Hello students, from today we are going to start our textbook reading and we are going to read the first book Flamingo and its first chapter. The name of the chapter is The Last Lesson. The very first lesson of your book named The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. This lesson tells us about the carelessness of human being. Each and every time we find ourselves being careless for doing some work now and then. We always try to postpone the work for tomorrow. And sometime the time gives us no chance to complete that particular task. In this story, we find the people of Alsek and Lorraine so careless about learning their own language, that is so called French language. The lesson serves the background of French and Austrian war. There is a war between Poland and Austria, sorry. Now, because of this war, the French army was defeated and the German captured two of the Francisci district, that is so called Alsace and Lorraine. युद्ध के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटनाएं और उस दौरान जर्मनी ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेक और लॉरेन के ऊपर अधिकार कर लिया था. दिस इज स्टोरी अबाउट वॉट द पीपल ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन हैड लॉस्ट. So read the story carefully and try to answer the questions that is asked in between the lesson and in the end of the lesson. The story is regarding with a boy named French, and French was very careless about school like you. Most of the students are quite careless about their school and homework. Here we find also a character named French. He is very careless about the school. So I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Himmel had said that he would question us on participle. And I did not know the first word about them. Now this boy named French, who is going to school but he is quite late and he is in fear. There were two reasons for his being afraid. The first one is he was getting late for school, and the second one was that Mr. Himmel, who was his teacher, had asked him to prepare participles. Means the teacher was about to ask questions on participle and he did not know even a single word of participle. टीचर ने कहा था उससे कि मैं पार्टिसिपल पर तुमसे क्वेश्चन करूँगा, तुम पार्टिसिपल पर क्वेश्चन प्रिपेयर करके आना, और उसे एक भी उसका जवाब पता नहीं था. देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे कि फ्रेंच उस दिन विद्यालय जाने से क्यों भयभीत था. उसके दो कारण थे, एक तो वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था और दूसरा पार्टिसिपल पे मैम जो उसके टीचर है मिस्टर हेमल वो क्वेश्चन पूछेंगे और उसे उसका एक वर्ड भी पता नहीं था. सो व्हाट ही डिसाइडेड, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक क्षण तो उसने विचार किया कि वो वहाँ से भाग जाए, स्कूल नहीं जाए और पूरा दिन घर के बाहर खेलने कूदने में बिताए. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open fields back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. There were two attractions in the nature. Why he wanted to be off from the school? The first one is the day was quite bright and beautiful. The birds were chirping at the edge of the wood, and the second attraction was that the Persian soldiers were drilling जस्ट बिहाइंड द सॉमिल. सॉमिल किसे कहते हैं? आरा मशीन को. आरा मशीन के पीछे पर्शियन सैनिक अपने सुबह का अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे.
जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। तो दीज टू अट्रैक्शन वर आस्किंग हिज अटेंशन एंड tempting him to be off from the school. It was all much more tempting than the rule of for participants, but I had the strength to resist and hurried off to school. वो क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा आकर्षक थी, लेकिन मैंने अपने आप को रोका और मैं तेज़ी से स्कूल की ओर चल दिया, यानी कि वो स्कूल जा ही रहा है। Now when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Now what is town hall? Town hall is a kind of a governmental department like post office. And from there all the information regarding the orders from the government, regarding the news of war, the people get all the information from there, because at that time there was I think no print media and radios, and so people got all the information from the bulletin board just outside the town hall. टाउन हॉल एक प्रकार का सरकारी विभाग था जिसके बाहर एक सूचना पट्ट लगा हुआ था, और लोग हर प्रकार का समाचार जो सरकार के ऑर्डर थे, युद्ध से संबंधित समाचार थे, वहीं से प्राप्त करते थे वो। नाउ फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the lost battle, the draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? देखो बता रहा है कि पिछले 2 वर्षों से सारे समाचार हमने यहीं से प्राप्त किए, जैसे कि हम युद्ध हार गए, हमें हमारे नेतृत्व वाले ऑफिसरों ने क्या आदेश दिया है, और आज भी मैंने यही विचार किया कि आज कौन सा दुखद समाचार यहाँ पर है कि लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई। नाउ देखो देयर विल बी ए क्वेश्चन, एंड व्हाट विल बी द क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल ही पास्ड थ्रू द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए उसने क्या देखा था, तो ही saw a crowd of people gathering there and they were reading something from the bulletin board there. Now the rest part of the lesson. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Vector, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me. Now when I was moving fast from there, I heard someone calling me. किसी व्यक्ति ने मुझे आवाज़ लगाई, and I saw that it was a blacksmith. Blacksmith means लोहार. His name was Vector. What was the name of that blacksmith? Vector. Vector जो कि उसके apprentice के साथ वहाँ पर मौजूद था, he called him. And what did he say? Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time. उसने कहा बेटा इतनी जल्दी स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं, अब तो तेरे पास बहुत समय है अपना स्कूल जाने के लिए। मीन्स इट वॉज ए काइंड ऑफ सेटायर, एक व्यंग था। मीन्स पीपल ऑल्सो न्यू वेरी वेल दैट दिस बॉय वॉज क्वाइट केयरलेस अबाउट हिज स्कूल। नाउ दे गॉट अ वेरी ड्रेडफुल न्यूज़ फ्रॉम दैट डे and from that bulletin board, and that's why they made a satire on him that you have plenty of time to go to school। अब इसका आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या भयानक न्यूज़ उन्होंने प्राप्त की थी, जिसकी वजह से उन्होंने उससे कहा कि अब इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। दैट्स वाई आई मेड हरी एंड rapidly I went to near Mr. Hamill's garden। मिस्टर हेमल देखो उसी स्कूल के अंदर रहते थे जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ा करते थे, और उसी स्कूल कैंपस में उसने एक सुंदर गार्डन भी बना रखा था। तो वो वहाँ तक पहुँच गया काफ़ी तेज़ी से चलते हुए। अब आगे क्या होता है, एक क्वेश्चन है, देखो पैराग्राफ ध्यान से देखना। मीन्स देयर इज ए क्वेश्चन के व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच ने विद्यालय में क्या असामान्य देखा था। सो
See, usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better. And the teacher's great ruler rapping on the table. Now देखो, वो बता रहा है कि जब रोज़ाना स्कूल प्रारंभ होता था तो काफ़ी अधिक चहल पहल स्कूल में होती थी, और इतनी चहल पहल के वो नीचे गली में भी सुनाई देती थी। जैसे कि डेस्क ड्रॉर का खोलना बंद करना, बार बार स्टूडेंट उन्हें खोल करके बंद करते हैं। दूसरा, एक ही स्वर में पाठ का दोहरान, ज़ोर ज़ोर से पाठ पढ़ते हैं, वेरी लाउड। साथ ही साथ अगर हमें इन बातों को स्पष्ट रूप से समझना हो तो हमें अपने दोनों हाथ अपने कान पर रखने पड़े, इतना शोर होता था, तब जाके हमें वो बात समझ में आती थी। ये रोज़ाना हुआ करता था, लेकिन आज क्या है? बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज तो पूरी तरह खामोशी थी, पूरी तरह शांति। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। वो कह रहा है कि मैंने ऐसा विचार किया था कि इस हलचल उथल पुथल का फ़ायदा उठा करके मैं बिना लोगों की नज़र में आए चुपचाप जाके अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा। लेकिन आज तो स्थिति विपरीत थी। आज तो स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत दिखाई देता था। देखो, संडे को ऑफ होता है, स्कूल में पूरी खामोशी होती है। सो स्कूल वॉज लुकिंग लाइक क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग। नाउ through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Himmel walking up and down with the terrible iron ruler under his arms. Now he looked through the window to find if the students are there or not. So what did he see? He saw that the students were already sitting at their places. ऐसा भी नहीं था कि छुट्टी थी, स्टूडेंट अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और मिस्टर हेमल वॉज वॉकिंग हियर एंड देयर टू एंड फ्रो विद अ आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। अपने कांख में एक लोहे का डंडा दबाए हुए इधर उधर कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। देखो, स्वाभाविक होता है जब आप सबके बाद कक्षा में पहुंचते हैं और स्वयं को दरवाज़ा खोल करके जाना पड़ता है, हर व्यक्ति की नज़र आप पर होती है तो बड़ी शर्म महसूस होती है। वही शर्म और डर फ्रेंजो को महसूस हुआ। बट नथिंग हैपेंड। एम हिमल सामी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था कि मेरी डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। मैंने देखा श्रीमान हेमल ने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि जल्दी से अपनी जगह पर जाकर के बैठो छोटे फ्रेंड, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection days and prize days. Now see, there was the second change that he noticed in the school that day. देखो, क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था कि उसने स्कूल में क्या असामान्य देखा था। मीन्स व्हाट चेंजेस डिड ही नोटिस इन द स्कूल दैट डे। सो फर्स्ट वॉज द स्कूल वॉज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, and the second thing, Mr. Hamel was in his special dress. Means he was wearing a green coat, a frilled shirt and a little black silk cap that all embroidered. उसने अपना स्पेशल ड्रेस, ग्रीन कोट, एक फ्राइलेड शर्ट और एक काली सिल्की कैप जिस पहन रखी थी जिसके ऊपर कशीदा हुआ था। एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स जिस कैप के ऊपर कशीदा निकला हुआ था। अब देखो, ये वो पोशाक थी जिसे वो साल में सिर्फ 2 ही दिन पहनता था। द फर्स्ट डे जब इंस्पेक्शन हो स्कूल का, और दूसरा जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो। लेकिन आज न तो इंस्पेक्शन डे था
और न ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था. सो वाई वॉज मिस्टर हेमल वियरिंग दैट स्पेशल ड्रेस? इट वॉज ए क्वेश्चन दैट अराइव्स इन हिज माइंड एट दैट टाइम. तो 2 चेंजेस हम लोग देख चुके हैं. नाउ थर्ड चेंज इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू. माइंड इट. बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम्न. इसके अलावा पूरा विद्यालय इतना शांत और खामोश दिखाई देता था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स. Old Hauser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. वो कह रहा है कि लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो ये थी कि हमारी कक्षा की लास्ट बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज हमारे गांव के लोग उन बेंचों पर बैठे हुए थे. ये लोग कौन कौन थे? शहर का पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और बूढ़ा हौजर, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे ग्रामीण लोग वहाँ पर बैठे हुए थे. देखो, द क्लासेस आर ओनली फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट कम एंड सिट देयर, बट व्हाई द विलेज पीपल वर सिटिंग देयर? So these 3 unusual changes he had seen in the school that day. The first one was the school was quite like Sunday morning. The second one was Mr. Hamel was in his special dress. And the third one was the village people were occupying the back benches of the classroom. Now everybody looked sad, and Hauser had bought an old primer thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. Now जो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर था सब उदास थे. बूढ़ा हौजर अपनी एक पुरानी डायरी लेकर के आया था. डायरी इतनी गंदी थी वो कि उसके ऊपर जगह जगह उंगलियों और अंगूठों के निशान दिखाई दे रहे थे, और उसने अपना चश्मा उस पेज के डायरी के पेज के ऊपर रख रखा था. While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Now, जब मैं इन सब चीज़ों पर विचार कर रहा था, क्यों गांव के लोग यहाँ पर हैं, क्यों एम हेमल विशेष पोशाक में, क्यों इतनी खामोशी है यहाँ पर, तभी एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन. के बर्लिन से आदेश आया है कि कल से अल्सेक और लॉरेन के विद्यालयों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. मतलब ये लोग फ्रांसीसी थे, अभी तक ये फ्रेंच भाषा पढ़ रहे थे, फ्रेंच भाषा बोल रहे थे, लेकिन एकदम इनसे इनका देश छीन लिया गया क्योंकि वो दोनों ज़िले जर्मनी के अधिकार में चले गए. इनसे इनकी मातृभाषा छीन ली गई, यानी कि अब इन्हें फ्रेंच की जगह जर्मन भाषा पढ़नी है और बोलनी है. सोचो, जो लोग पढ़ने और लिखने के प्रति इतने लापरवाह थे, सोचते थे कि चलो कल सीख लेंगे, उनके हाथों से वो कल ही छीन लिया गया. उनके पास अब कोई कल नहीं था कि जब वो उस भाषा को दोबारा सीख सकें, पढ़ सकें, लिख सकें. तो वो बता रहे हैं, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. नया अध्यापक कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. ये तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके प्रति ज़्यादा सजग बनो, ज़्यादा ध्यान से इसे पढ़ो. वॉट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी. वो कह रहा है कि इन शब्दों ने मेरे कानों पर जैसे तूफ़ानी गर्जना कर दी. मतलब इसके मन में एक विद्रोह पैदा हो गया. क्यों? ऑन द द रेचे दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अच्छा, नीच लोग. अच्छा, तो ये वो समाचार था जो इन्होंने उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लिखा. देखो, एक क्वेश्चन आएगा, वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? सो व्हाट वाज द आंसर? दैट देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन.
that from tomorrow German will be taught in the schools of अल्सेक एंड लॉरेन। ये ऑर्डर वहाँ पर लिखा हुआ था। क्वेश्चन आएगा जिसका जवाब तुम्हें देना। नाउ सी माई लास्ट फ्रेंच लेसन। Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the sar. अब देखो इसे खेद हो रहा है। मेरा अंतिम पाठ, अरे मैं कितना लापरवाह था। मैंने पहले क्यों नहीं अपने पाठ सीखे। मैं पहले क्यों पक्षियों के अंडे ढूंढने जाता था और ढलानों पर फिसलने जाता था स्कूल आने की अपेक्षा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। अब देखो ये प्रश्न तुम्हारे फिर आएगा कि बर्लिन का ऑर्डर सुनकर के फ्रेंच में क्या परिवर्तन आया। तो फ्रेंच जिसे अभी तक अपना स्कूल बकवास लगता था, जिसे अपनी किताबें महज वज़न लगती थी, अब वो अचानक उसे प्रिय लगने लगी। वो किताबें उसे अपनी पुरानी मित्र नजर आने लगी। और एंड आई कुडंट गिव अप एंड मिस्टर हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब श्रीमान हेमल, जिसको कि पहले वो क्रैंकी सनकी समझता था, अब ये विचार कि वो सदा के लिए छोड़ करके जा रहे हैं, वो मिस्टर हेमल की उन सारी बातों को भूल गया और उससे मिस्टर हेमल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। अब वो नहीं चाहता है कि वो वहाँ से जाएं। तो ये परिवर्तन हम लोगों ने देखे। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में भेजूँगा और साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।